व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी होता है मार्केट का एक फ्यूल, मार्केट को चलाने के लिए, यानी मार्केट अप डाउन जो मूव करती हो ना, जो मोमेंटम होती है मार्केट के अंदर, वो लिक्विडिटी की वजह से आती है। यानी अगर आप सोचो, आप कहीं पे बाइक लेके घूमने जा रहे हो, तो आपके बाइक के अंदर पेट्रोल ही नहीं है, तो आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। आप वापस आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। जब तक आपके बाइक के अंदर पेट्रोल नहीं होगी, तब तक आप वापस नहीं आ पाओगे। एंड यही है मार्केट। मार्केट के अंदर जब तक लिक्विडिटी रहेगी, तब तक मार्केट अपना अप ट्रेंड मूव करेगा, एंड जब तक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी रहेगी, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड मूव करेगा। सो इसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो हम इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, लिक्विडिटी है क्या एक्चुअल में, हम इसको पूरा एकदम फुल्ली डिटेल्स में समझते हैं। एंड सो लिक्विडिटी द फॉरेक्स मार्केट इज a zero sum game, which means that for a traders and for institution to buy sell one currency pairs, it needs necessity that there is other traders institutions with an opposite side positions. If a smart money banks want to buy a currency pair, they will need a sellers in the market the existing factory to place the position in the market is called liquidity. Yani, the forex market is a zero sum game, okay, which means that for a traders, institutions to buy sell one currency pairs, yani institutions, banks buying one currency pairs, and that is other traders institutions with is an opposite side position. If a smart money banks want to buy one currency pair and need sellers in the market the existing factually to place these positions in the market is a call liquidate. So market मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्या है? कॉल, यानी चारों ओर से सिर्फ बाइंग बाइंग ही है, तो मार्केट के अंदर अभी सेलर की जरूरत है। ओके, the liquidity is identified by stop loss. Where the stop loss exists is where the liquidity also exists. Smart money needed to active the stop loss of existing order in the market so that they can place their positions in the market. The liquidity is identified by stop loss. Okay, by stop loss. Where the stop loss losing exists is where the liquidity also exist. Smart money need to active the stop loss of existing order. Okay, existing order in the market so that they can place their position in the market. And the banks manipulated the price because of liquidity. Okay, bank manipulated price because of liquidity. But why? Banks negotiate larger trading volumes and sometimes find it difficult to find the other side of their traders. So they manipulated the price so that they can have their positions in the markets. Okay, the banks manipulated the price because of liquidity. यानी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए बैंक्स मैनिपुलेटेड बाय साइड एंड सेल साइड. बट व्हाई? बैंक्स नेगोशिएट लार्जर ट्रेडिंग वॉल्यूम. बैंक एक बाय साइड एंड सेल साइड एक बहुत बड़ी वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, एंड समटाइम फाइंड डिफिकल्ट टू फाइंड अदर साइड ऑफ देयर ट्रेडर्स टू दे मैनिपुलेटेड of price. This can have been their positions in the market. Okay, liquidity types. In the forex market, there are two type liquidity. Okay, two type liquidity, which are BSL, SSL. BSL full from buy stop loss liquidity. SSL full from सेल स्टॉप लॉस लिक्विडिटी. यानी बाय स्टॉप लॉस लिक्विडिटी मतलब होता है, अगर मार्केट बाइंग जा रहा है, यानी उसको अभी सेलिंग में जाना है, तो क्या होगी, यानी पहले तो क्या करेगा, वो सारे बायर की स्टॉप लॉस खा लेगी, फिर वो नीचे आएगी. एंड सेल साइड स्टॉप लॉस, सेल साइड लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एंड एक जगह पे आके रुक गया, एंड फिर अचानक से नीचे की सबके ऊपर की सारी लिक्विडिटी लेकर सीधा ऊपर चला गया, तो हम इसको बोलेंगे एसएसएल, यानी सेल साइड लिक्विडिटी. सो बाय स्टॉप लॉस लिक्विडिटी, बीएसएल. द बीएसएल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टॉप लॉस लिक्विडिटी of sales order after the BSL is taken, the market reverts to the downside because banks use the BSL to place sell order in the market. Okay, buy stop loss liquidity, BSL. The BSL is organized by stop loss of sales order
after the BSL and after the buy side liquidity is taken, the market reverses to the downside because banks use the BSL to place sales order in the market. What to focus on BSL? PMH यानी previous month high, PWH यानी previous week high, PDH यानी previous day high, HOD यानी high of the day, old high यानी swing high यानी previous day की swing high, previous day की ना डे कैंडल जो डेली कैंडल है ना उनकी स्विंग हाई, इक्वल हाइज यानी रिटेल रेजिस्टेंस। ओके, सो हम BSL को समझते हैं। तो पहले क्या हुआ, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, इधर से एक अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है एंड इस लेवल पे आके इस बाई साइड इस जो ये जो स्विंग है इसकी बाई साइड की लिक्विडिटी लेकर मार्केट सीधा नीचे ड्रॉप हो गया, तो हम उसको बोलेंगे BSL टेकन यानी बाई साइड लिक्विडिटी ले ली गई एंड दिस इज इक्वल साइड। आप देखते हो ना एक जगह पे मार्केट आगे ऊपर नीचे एक ही लेवल से बार बार रिजेक्शन लेता है, लेकिन फिर क्या होता है एक ब्रेकआउट होती है, एक रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट होती है। ब्रेकआउट होने के बाद उस लेवल की सबके लिक्विडिटी लेकर मार्केट एकदम धराशायी निफ्टी में हमेशा नोटिस करना, निफ्टी में जब भी मार्केट के अंदर ऐसे लेवल्स क्रिएट होगी ना ऊपर नीचे, तो अचानक से एक ऊपर से मूव आती है, सबकी स्पेशल हंटिंग होती है बाई साइड लिक्विडिटी एंड बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट अपना जो सेल ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करती है। नीचे से इधर से बाइंग गया लेकिन ऊपर आके रेंज बाउंड हो गया। पहले क्या हुआ, पहले BSL यानी बाई साइड लिक्विडिटी ले ली गई, फुल बाई साइड लिक्विडिटी इधर पे ले ली गई, सारे बायर के स्टॉप लॉस ले ली गई। स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मार्केट ने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। ओके, सो हम PMH को समझते हैं यानी प्रीवियस मंथ है, तो हमारे सामने ये क्या है, ये एक स्विंग है। ओके, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो ये क्या है, प्रीवियस मंथ की एक कैंडल। ओके, ये प्रीवियस मंथ की कैंडल है। प्रीवियस इससे पहले मंथ की भी बाइंग गया था एंड फिर दूसरे मंथ भी बाइंग जाने बाद ये जो कैंडल की हाई दिख रहा है ना, इस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद यानी बाई साइड लिक्विडिटी फुल बायर की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट सीधा नीचे ड्रॉप हो गया, तो हम इसको बोलेंगे BSL टेकन यानी बाई साइड सारे लिक्विडिटी कंप्लीट हो चुकी है मार्केट की। एंड प्रीवियस वीक हाई हम एकदम मंथली से सीधा एकदम जो 15 मिनट कैंडल है उसकी तरफ आएंगे, एकदम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम। ओके, तो अभी हम वीकली को समझते हैं। पहले क्या हुआ, पहले वीक ये क्या था, ये जो कैंडल दिख रहा है ना, इस कैंडल की पहले क्या हुआ, ये पूरा कैंडल बाइंग में गया था। बाइंग में जाने के बाद फिर इधर की पूरी सबकी बायर की लिक्विडिटी ले ली गई यानी BSL टेकन यानी BSL टेकन का मतलब बाई साइड स्टॉप लॉस पूरा कंप्लीट हो चुका है, बाई साइड की सारा लिक्विडिटी कंप्लीट हो चुका है। अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, फिर से ऊपर गया एंड फिर इधर पे देखो, फिर क्या हुआ, ये जो लास्ट जो बाइंग कैंडल है इस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ले ली गई यानी सारे बायर की स्टॉप लॉस पहले सारे बायर सब पहले इधर तक गया एंड सारे बायर की स्टॉप लॉस कंप्लीट खाने के बाद फिर मार्केट नीचे चला आया। ओके, एंड इधर पे और एक एग्जांपल समझते हैं। ये क्या था, प्रीवियस वीक हाई, इस हाई की सारे लिक्विडिटी ले ली गई एंड फिर मार्केट नीचे ड्रॉप हुआ। ये था प्रीवियस वीक हाई एंड अभी समझते हैं प्रीवियस डे हाई क्या होता है उसको समझते हैं। पहले क्या हुआ, ये था ये था प्रीवियस डे हाई एंड इस हाई की लिक्विडिटी पहले पूरा खा ली गई यानी पूरे बाई साइड लिक्विडिटी कंप्लीट हो चुका है। अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये था प्रीवियस डे हाई, फिर से इधर तक मार्केट 2 दिन नीचे गिरा, 2 दिन नीचे गिरने के बाद एंड मार्केट ने सोचा इस लेवल पे आके मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। इधर पे क्या हुआ, पहले पहले तो एक बाइंग कैंडल हुई, बाइंग कैंडल पहले ट्रैपिंग कैंडल कंप्लीट हुई। ट्रैपिंग कैंडल होने के बाद यानी सबकी इधर से इधर तक सबका पोजीशन होगा, तो पहले क्या किया मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सारे सबका स्टॉप लॉस खा लिया, सबका पैसा खा लिया। खाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आया यानी अब जो अपना डाउन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू किया एंड फिर मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या किया, इस प्रीवियस डे हाई की कैंडल की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर इसने डाउन ट्रेंड कंप्लीट कंटिन्यू किया एंड अभी समझते हैं हाई ऑफ द डे यानी डे के अंदर एक हाई होती है। अभी हाई ऑफ द डे को समझते हैं। ये था हमारा प्रीवियस डे हाई। हमारा जो डेली कैंडल है ना, डेली डेली एक कैंडल के अंदर
जो ये चार्ट आप देख रहे हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये था हमारे, ये स्विंग था हमारे जो प्रीवियस डे हाई ये हमारा स्विंग है, ओके, हाई ऑफ द डे प्रीवियस डे। एंड इसने क्या किया, आज के दिन इस कैंडल ने इस हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर से नीचे पूरा गिर गया, ओके, पूरा बीएसएल यानी बाई स्टॉप लॉस लिक्विडिटी सबकी स्टॉप लॉस ले ली गई। जितने भी इधर तक स्टॉप लॉस था वो सबको लेकर सीधा नीचे चला आया। एंड आप समझते हैं इक्वल हाइज रेजिस्टेंस, रिटेल रेजिस्टेंस, ओके, इक्वल हाइज यानी एक जगह पे मार्केट हमेशा मूव करती है। यानी ये क्या दिख रहा है, ये जो जोन दिख रहा है ना, ये सोचो ये एक रेजिस्टेंस है, ओके। एंड आप सब लोगों ने ये वाला रेजिस्टेंस मार्क किया होगा। जब भी आप सब ने ये वाला रेजिस्टेंस मार्क किया होगा तो क्या हुआ इधर पे, पहले बाइंग गया एंड फिर पूरा नीचे मार्केट ड्रॉप किया, यानी बाई स्टॉप लॉस लिक्विडिटी, सबका स्टॉप लॉस इधर पे लिक्विडिटी, सबकी लिक्विडिटी ले ली गई। ये मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, ओके। एंड अभी समझते हैं सेल स्टॉप लॉस लिक्विडिटी यानी एसएसएल। द एसएसएल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टॉप लॉस ऑफ बाय ऑर्डर after the SSL is taken, the market reverts to the upside because banks use the SSL to place buy order in the market. Okay, क्या हुआ? The SSL is organized by stop loss of buy order. After the SSL is taken, the market reverts to the upside because banks use SSL to place buy order in the market. Okay, what to focus on SSL? ओके, एसएसएल का जितने जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। पीएमएल का मतलब होता है प्रीवियस मंथ लो, पीडब्ल्यूएल का मतलब होता है प्रीवियस वीक लो, पीडीएल का मतलब होता है प्रीवियस डे लो, एंड एलओडी का मतलब होता है लो ऑफ द डे, एंड ओएलडी ओल्ड लो का मतलब होता है स्विंग लो, यानी हमारा जो डेली कैंडल है उस डेली कैंडल के अंदर लोअर लो लोअर हाई होते हैं ना, उसको हम बोलेंगे स्विंग लो। एंड इक्वल लोज यानी रिटेल सपोर्ट, रिटेलर की जो सपोर्ट होती है उसको हम बोलेंगे इक्वल लोज। तो हम इसको समझते हैं, पहले इक्वल लो को समझते हैं। पहले क्या हुआ, सोचो ये डाउन ट्रेंड के, ये एक डाउन ट्रेंड है, ओके। ये डाउन ट्रेंड के अंदर नीचे से ये पहले नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, यानी एक जगह पे हमेशा देखते हो ना आप मूव रेंज बाउंड की तरह, इधर तक 1 घंटे तक ऊपर बाइंग गया, फिर 1 घंटा नीचे आया, थोड़ा थोड़ा एक दो कैंडल धीरे धीरे सीपीटी ऐसा करके नीचे आया एंड फिर ऊपर गया निफ्टी। ऊपर जाने के बाद एंड फिर इसी लेवल पे आके एंड क्या हुआ, इस लेवल पे आके ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जितने भी सारे सेलर्स थे, यानी जितने भी सारे जो इस लेवल पे जो बायर्स थे, उन सबकी स्टॉप लॉस ले ली गई। सबके स्टॉप लॉस जितने सारे इस लेवल पे जो बायर था ना, इधर से बाय कर रहा था, बार बार बाय कर रहा था एंड ऊपर से सेल कर रहा था, यानी बाय स्टॉप लॉस एंड सेल स्टॉप लॉस दोनों की लिक्विडिटी लेने की। लिक्विडिटी लेने के बाद पहले क्या हुआ, पहले बायर तो खुश थे, वो उसका जो लेवल ब्रेकआउट जो सेलर्स थे ऊपर उनका, वो तो बहुत खुश था, हाँ मेरा जो इस लेवल पे ब्रेकडाउन आया, अब मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, हुआ कि उन सबकी लिक्विडिटी ले ली गई, जितने भी सारे सेलर्स थे इसी लेवल पे सबकी स्टॉप लॉस ले ली गई एंड नीचे से भी जितने भी बायर्स थे उनकी भी स्टॉप लॉस ले ली गई। दोनों साइड लिक्विडिटी लेने के बाद एंड मार्केट देखते हो ना, ऐसे सपोर्ट जब ब्रेक होती है अचानक से 1-2 कैंडल के अंदर मार्केट पूरा 100-200 पॉइंट मूव आ जाते हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर। सो हम इसको बोलेंगे इक्वल लॉस, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिटेलर की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना, हम उसको बोलेंगे इक्वल लॉस, ओके। एंड अभी हम समझते हैं एसएसएल को। एसएसएल जो ये एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के आने के बाद एंड अचानक से ये जो लेवल है इस स्विंग को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके यानी ये जो स्विंग है, इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद ये सारा स्टॉप लॉस खा खाए, पहले क्या किया, सारा स्टॉप लॉस खा लिया, सारा स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर ऊपर चला गया, यानी जितने भी सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस थे वो सबके लेकर सीधा ऊपर चला गया, ओके। तो हम तो इसको समझते हैं पीएमएल यानी प्रीवियस मंथ हाई लो, प्रीवियस मंथ लो। पीएमएल का मतलब होता है प्रीवियस मंथ लो, ओके, प्रीवियस मंथ। तो हम ये क्या था, ये जो कैंडल दिख रहा हो ये ये पिछले महीने की कैंडल कैंडल है एंड ये कैंडल इसकी लो है, ये वाला कैंडल एस। एंड ये वाला कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल की सारे लिक्विडिटी ले ली गई। प्रीवियस मंथ की जितने भी जो लो के अंदर, इस लो के अंदर जितने भी सेलर था उन सबके लिक्विडिटी ले ली गई। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया एंड फिर ये क्या था, प्रीवियस मंथ लो, यानी जितने सारे बहुत सारे बायर
इस लेवल से बहुत सारे लोगों ने बाय किया है एंड सबकी स्टॉप लॉस इस लेवल पे है। तो क्या किया पहले मार्केट ने? मार्केट ऊपर गया एंड नीचे आके सारे जितने भी सारे बायर थे, यानी जितने सारे बायर थे उनके सबके स्टॉप लॉस ले लीजिए। सबके ऐसा लगने के बाद इसलिए इस लेवल पे जितने सारे बायर्स था एंड सेलर्स थे, सबके स्टॉप लॉस से निकाल मार्केट फिर से अपना ट्रेड को कंटिन्यू किया एंड मार्केट ऊपर चला गया एंड फिर मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद ये था प्रीवियस मंथ लो, यानी प्रीवियस मंथ की कैंडल, ये वाले कैंडल की फिर से लिक्विडिटी ले ली गई। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने क्या किया? ये जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी पे तो पूरा ले ली गई एंड फिर से सेम ही चीज़ सबकी स्टॉप लॉस ले ली गई, यानी एसएसएल पूरा कंप्लीट एंड मार्केट फिर से बाइंग में चला गया। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आप किसी भी चीज़ को मार्क कर रहे हो, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जिस भी चीज़ को मार्क करो, आप पहले वेट करो एक चीज़ के लिए, एक ब्रेकआउट के लिए। आप वेट करना, क्या सबकी स्टॉप लॉस कंप्लीट हो चुकी है? क्या बाय साइड की लिक्विडिटी कंप्लीट, यानी बाय साइड स्टॉप लॉस लिक्विडिटी कंप्लीट या फिर सेल साइड लिक्विडिटी कंप्लीट? ये दोनों चीज़ के लिए वेट करना, फिर अपना एंट्री फाइंड करना एक सही कैंडल को देखने के बाद। ओके? अगर किसी की चीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी कैंडल दिखे तो समझ लेना उस जगह पर इंस्टीट्यूशन की मनी लगी हुई है, या फिर जो बैंक वाले, जो हेजिंग फंड वाले हैं, उनका पैसा लगा है उस लेवल पे। ओके? तो अभी हम समझते हैं पीडीएल, यानी प्रीवियस डे लो को। सो ये हमारा प्रीवियस डे का लो है एंड ये वाला कैंडल एक इनसाइड बार है, यानी इस कैंडल के अंदर ये वाला कैंडल आ चुका है तो हम इसको इनसाइड बार कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस डे लो है एंड मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इस लेवल के अंदर ये जो लिक्विडिटी है, ये सारा लिक्विडिटी ले ली गई, यानी सेम ही चीज़ मार्केट ने पहले क्या किया? पहले एसएसएल, यानी सारा सेल साइड लिक्विडिटी ले ली गई। जितने भी सारे सेल ऑर्डर्स थे उनकी सबकी सबकी एसएल ले ली गई। सबकी एसएल लेने के बाद एंड मार्केट ने सीधा ऊपर रैली कर दिया एंड फिर से सेम ही चीज़, सबका सेलिंग ऑर्डर, ये जितने भी सारे सेलर्स इस लेवल पे सेल कर रहे थे ना, उनका सारा स्टॉप लॉस खाने के बाद एंड फिर मार्केट ऊपर गया एंड फिर से थोड़ा-सा सेलिंग आया, फिर ऊपर गया एंड फिर से सेम ही चीज़। इस लेवल पे आया, सारे सेलर की स्टॉप लॉस ले ली गई एंड ये सारे सबकी सेल साइड लिक्विडिटी ले ली गई एंड मार्केट ऊपर चला गया बाइंग पे एंड एलओडी को हम समझते हैं अभी लो ऑफ द डे, यानी हमारे जो डे के अंदर जो लो है उस ले को समझते हैं। ये हमारा एक डेली 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जितने सारे कैंडल होता है, जितने भी सारे कैंडल है उसको हम देख रहे हैं ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एंड 15 मिनट टाइम पर हमारा प्रीवियस डे लो कौन-सा था? ये वाला था। हमारा डे ऑफ द लो कौन-सा था? ये वाला था एंड पहले क्या किया मार्केट ने? इस सारे डे ऑफ द लो की लिक्विडिटी ले ली थी इस लेवल पे। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फिर अपना ट्रेड को कंटिन्यू किया एंड फिर हम नीचे आते हैं। हम अभी हम समझते हैं ओएलडी लो, यानी ओल्ड लो को, यानी स्विंग लो। डेली टाइम फ्रेम पर ये ओल्ड लो आप तभी अप्लाई करो जब भी आपको आपको डेली कैंडल, डेली टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर रहे हो, या फिर डेली टाइम फ्रेम या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम। जब भी आप डेली टाइम फ्रेम या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो तो आप आह, ओल्ड ओल्ड लो को आप यूज़ करो या फिर ओके। आप देख रहे हो कि ये अब मेरा प्रीवियस डे स्विंग है एंड मार्केट ये क्या किया? मार्केट ने सीधा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एंड प्रीवियस डे स्विंग की सबकी एसएल ले ली गई, यानी जितने भी सारे इस लेवल पे जो बड़े-बड़े प्लेयर्स थे, जो बड़े सेलर्स थे, उसकी सारी की सारी एसएल ले ली गई। यानी आप एक चीज़ आप सब लोग इतनी देर ये मत समझना, ये सारे रिटेलर्स की स्टॉप लॉस है, ये सारे बड़े प्लेयर है, जो बिग प्लेयर है, उनकी ऑर्डर्स है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर तो रिटेलर नहीं देखेगा, रिटेलर देखेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, फिर 5 मिनट या फिर 15 मिनट, वो इतना देर ही देखेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं जाएगा। ए, डेली टाइम फ्रेम पर देखता है, जो बिग प्लेयर है, वो हमेशा डेली टाइम फ्रेम को नोटिस करता है, क्योंकि वो उसी टाइम फ्रेम पर वो अपना ऑर्डर फाइंड करता है। उसको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, उसको छोटा-मोटा एक डेली का जो 1 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जो कैंडल होती है, उनको वो प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो तो एकदम उनका स्टॉप लॉस होता है। सो अभी हम इसी को समझते हैं। पहले क्या हुआ? ओल्ड लो है, यानी इस लो की सबकी लिक्विडिटी ली थी की यानी सबकी एसएल हंटिंग हुई। एसएल हंटिंग होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चला गया एंड अभी आप समझते हैं इक्वल लॉस, यानी रिटेल सपोर्ट। रिटेल सपोर्ट क्या होता है? मार्केट ने क्या किया? ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह आप समझो। ये ऊपर की एक सोचो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है एंड ये नीचे से ये सपोर्ट है। ये मार्केट ने क्या किया? फिर से नीचे इस लेवल पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने का फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से इस लेवल पे ऊपर गया
एंड फिर और एक बार ऊपर गया एंड फिर जाके इस लेवल पे आके ये जो 2 कैंडल देख रहे हो ना, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इस लेवल पे स्टॉप लॉस यानी स्टॉप लॉस को खा लिया है। पहले पहले तो कैंडल ये वाला बाइंग कैंडल नहीं था, पहले ये कैंडल था एक रेड, यानी फुल रेड इस लेवल तक आई है। सबको जब भी आपको वो सोच ये जो कैंडल देख लो वो इस लेवल पे था। इस लेवल पे जब ऐसे कैंडल बन रही थी सबको पैनिकनेस आ गई, यार मैं क्या करूँ? मेरा बहुत बड़ा लॉस लग रहा है। एंड फिर वो अपने आप को अपने ईगो को साइड में रख के वो अपना लॉस को बुक कर लेता है एंड फिर मार्केट ऊपर चला जाती है। यानी पहले क्या किया, सारे जितने भी सारे सेलर्स थे सबकी स्टॉप लॉस ले लिए। स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया। ओके, एंड व्हेन द बीएसएल इज टेकन द मार्केट रिवर्स टू द डाउन साइड, यानी बीएसएल का मतलब होता है द मार्केट रिवर्स टू डाउन साइड। बाई साइड लिक्विडिटी का मतलब होता है डाउन साइड जाने का। एंड व्हेन से एसएसएल इज टेकन द मार्केट रिवर्स टू द अप साइड, यानी एसएसएल का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाने के लिए, यानी सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड सबकी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर ही मार्केट ऊपर जाती है। एंड बाई बीएसएल का मतलब होता है सारे बायर की स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर मार्केट नीचे जाती है। ओके, स्टॉप लॉस स्टॉप हंटिंग मैनिपुलेशन फॉर लिक्विडिटी। एसएच का मतलब होता है स्टॉप हंटिंग। ओके, स्टॉप हंटिंग इज ए मोमेंटम movement. Stop hunting is a movement used to neutralize liquidity. Stop loss. It's a false breakdown above below the zone where there is a liquidity. The market makers banks usually use high impact news to take liquidity. Okay, yani Stop hunting, stop loss hunting is a momentum used. Stop loss hunting is a momentum use. यानी जब भी मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, एक जगह के अंदर बहुत बड़ी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ऊपर नीचे मूव होती है। ओके, आप देखते हो ना न्यूज़ के टाइम फॉरेक्स के अंदर गोल्ड या फिर बिटकॉइन या फिर जीबीपी यूएसडी या फिर यूरो यूएसडी, पर आप जब भी देखते हो, जब भी जब भी स्टॉप लॉस हंटिंग मोमेंटम यूज होती है तभी मार्केट न्यूट्रलाइज रहती है। पहले लिक्विडिटी रहती है। इट्स ए फॉल्स ब्रेकडाउन, पहले फेक ब्रेकडाउन देने के बाद एंड बिलो द जोन वायर द लिक्विडिटी एंड द मार्केट मेकर बैंक यूजल यूज हाई इम्पैक्ट न्यूज। बैंक खुद जो न्यूज है ना वो खुद क्रिएट करता है एंड सबकी उस जगह पे सबका स्टॉप लॉस ले लेता है। ऊपर का भी स्टॉप लॉस ले लेता है, नीचे से भी स्टॉप लॉस लेता है, किसी किसी को कोई हालत में नहीं छोड़ता एंड सारा पैसा खाने के बाद वो अपना मन भरता है। ओके, एंड दिस इज स्टॉप लॉस हंटिंग मैनिपुलेशन फॉर दिस लिक्विडिटी। पहले ये देखो, ये क्या हुआ, पहले बीएसएल हुआ, बीएसएल होने के बाद ये देखो इस जगह पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। मार्केट को आपने क्या सोचा, आपने देखा कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है एंड ये एवरेज से रिजेक्शन लिया हुआ है एंड मार्केट इस जगह से गिरना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, पहले सारे की सबकी स्टॉप लॉस ले ली गई, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, फिर मार्केट नीचे आई। हमने तो इसको हमने मतलब इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क कर लिया एंड ये हमारे एफईजी भी है। मार्केट ने क्यों इस एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं किया? पहले जो हमने मार्क किया था, ये जो एफईजी है, देखो देखो ये जो कैंडल है एकदम परफेक्ट सेलिंग कैंडल हो, सेल करने के बेस्ट कैंडल, जो भी इस लेवल पे सेल किया उन सबके बड़ी बुरी तरीके से लगा था। ओके, पहले आपको एक सेल साइड यानी स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए थोड़ा सा वेट करनी होगी, तभी आप एंट्री के लिए प्लान करो। एंड एसएसएल, ये था बीएसएल यानी बाई साइड लिक्विडिटी। ओके, एंड अभी एसएसएल देखो पहले क्या हुआ, मार्केट एंड इस लेवल पे मार्केट फिर से ऊपर गया एंड थोड़ा सा नीचे एंड अचानक से एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आई। जब भी ऐसे रेड कैंडल दिखे एक ब्रेकडाउन के बाद, तब इधर पे डेफिनेटली हर कोई रिटेल प्लेयर वो इस लेवल पे सेल करेगा। वो सोच रहे इतना बड़ा रेड कैंडल है, मोमेंटम में एक दो कैंडल तो मिल जाएगा मेरे को, वो इस लालच में उतरते हैं। लेकिन क्या होता है, उनका इधर पे पूरा अकाउंट ही उड़ जाती है। वो सोचते हैं या फिर थोड़ा सा रुक जाता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा लॉस रिकवर हो जाए, उस लॉस रिकवर के चक्कर में पूरा अकाउंट इस लेवल पे आके ब्लो कर देता है। एंड ये जो मैंने मार्क किया था, ये मैंने 1 आवर पे मार्क किया था। ओके, एंड ये आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहे हो। 1 आवर पे ये 15 मिनट टाइम पे पर ये छोटा सा दिख रहा है एंड 1 आवर पे ये जस्ट एक पुल बैक था, छोटा सा। ओके, छोटा सा लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस हंटिंग। एंड फिर से इस लेवल पे मार्केट आके क्या हुआ, बाई साइड लिक्विडिटी ले ली गई, यानी सारे सबकी स्टॉप लॉस को हंटिंग करने के बाद मार्केट फिर से नीचे एंड फिर से एंड अब इस जगह पे आप बताओ यहाँ पे क्या सेल साइड लिक्विडिटी होगी या फिर बाई साइड लिक्विडिटी, आप कमेंट के अंदर बताना। सो मैं अभी बता देता हूँ, इस लेवल के अंदर फिर से एसएसएल यानी सेल साइड लिक्विडिटी ले ली गई।
जितने भी सारे सेलर्स थे उसकी सबकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अपना ट्रेड को कंटिन्यू कर दिया। सो अभी समझते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग मैनिपुलेशन फॉर लिक्विडिटी। स्टॉप लॉस हंटिंग मैनिपुलेशन, ये देखो अब हम कुछ समय हमें एक ऐसी ऐसी ब्लॉक मिलता है, ऑर्डर ब्लॉक। हमने इस ब्लॉक को मार्क भी कर लिया। मार्क करने के बाद हमें हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा वेट किया एंड इधर पे देखो ये क्या है, फिर से इधर पे बाय बीएसएल, यानी सबकी बाय सारे जितने भी सारे बायर्स है उन सबकी स्टॉप लॉस ले ली गई। एंड नीचे से ये देखो, नीचे से वही सेम नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड सबकी एसएसएल मतलब सबकी सेल साइड स्टॉप लॉस को हंटिंग पहले एसएसएल यानी सेल साइड लिक्विडिटी ले ली गई एंड सबकी स्टॉप लॉस को खाने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया। तो ये होता है स्टॉप लॉस हंटिंग मैनिपुलेशन। सो और समझते हैं, और थोड़ा सा एग्जांपल को समझते हैं। अभी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को समझते हैं। न्यूज़ इवेंट यानी जब भी मार्केट के अंदर न्यूज़ होती है तो मार्केट को मार्केट उस टाइम पे ऊपर नीचे होता रहता है। अगर रैली होता है तो रैली होता ही रहता है, रुकने का कोई नाम ही नहीं लेता। इफ ये कैंडल 100 पिप्स, 200 पिप्स, 300 पिप्स का कैंडल कम बना देता है यूएस 30 के अंदर, जीबीपी के अंदर, यूरो के अंदर, गोल्ड के अंदर। सो द हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट आर यूज टू हंट लिक्विडिटी in the market. Always pay attention to the news calendar. Okay, to now the pairs that will move genuinely, pairs with many news forecasts high impact, those pairs are going to move in trending during the day or a week. Yani the high impact news event are used to हंट लिक्विडिटी। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को इम्पैक्ट करने के बाद पहले कुछ सीपीआई डेटा एंड ये सारा कुछ जब भी आपको डेटा देखते हो तो उस लेवल पे आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हो। हाँ, मैं इस लेवल पे आके ट्रेड करूँगा, तो आप थोड़ा सा पहले ही आप अपना एंट्री को ले लेते हो। एंट्री को लेने के बाद उस लेवल पे बहुत सारा लिक्विडिटी होती है एंड मार्केट अपना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हुए सबकी स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर वो अपना मोमेंटम देती है। उस मोमेंटम को, उस जो न्यूज़ चैनल है, उस न्यूज़ चैनल को लेने के चक्कर में कितने सारे लोगों की अकाउंट ब्लॉक हो जाती है, कितने सारे की बहुत बड़ी लॉस लगती है। इसलिए मैं आप सभी का एक ही चीज़ कंसीडर करूँगा, आप न्यूज़ से दूर रहो। थोड़ा-सा न्यूज़ जाने के बाद ट्रेड लो ना। या मार्केट क्या भाग रही है? मार्केट पूरा दिन है आपके लिए, फॉरेक्स मार्केट। आप अपना सेटअप ढूँढो, फिर आप ट्रेड लो। न्यूज़ के टाइम ट्रेड मत करो। न्यूज़ के टाइम किसी भी स्ट्रैटेजी, कोई भी चीज़ काम नहीं करता। उस टाइम सिर्फ मैनिपुलेशन होती है। एंड दैट इज लिक्विडिटी। एंड थोड़ा हम इसको चार्ट के अंदर समझते हैं एंड आज के लिए वीडियो इतना रखते हैं एंड इसका पार्ट 2 मैं कल या फिर परसों ला दूंगा। हम इसको चार्ट के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।